selection in pseudocode. Selection means which we have already done in grade 7 के selection का मतलब क्या होता है that we have options, more options. ठीक है ना. So for selection what we use decision box. See, this is example of this. Like if you are making any flowchart or algorithm or pseudocode, तो यहाँ input cost मतलब user से we are taking the cost. If the user, let's say मैं user हूँ and I am putting the cost 20, ठीक है. If cost is less than 22, so the output will be yes, because 20 is less than 22. So my output will be you can afford it. But let's say as user I am taking 25. तो अब मेरा जो आउटपुट चला जाएगा, जो मेरा स्टेटमेंट फॉरवर्ड हो जाएगा, वो कहाँ चला जाएगा? वो चला जाएगा नो के ऊपर. So with the no I have you cannot afford it. So you need to do some process. Process क्या है? That we are putting some variable और वहां पे एक हमने process डाल दिया. Whatever is cost I have selected. मैंने क्या select की थी? I have selected 25, है ना? तो 25 minus 22, that will be 3 remaining. Okay, so the output will be you need extra more. अब जाहिर सी बात है, मतलब 25 से 23 पे चले गए हम तो extra more और प्रोग्राम स्टॉप हो गया. ठीक है. This is simple if and else, yes or no, which we have already done in grade 7. ठीक है. यहाँ पे भी हमारे पास एक और एग्जाम्पल है with a conditional statement. We can say that conditional statement, selection statement, decision, multiple names के हम जो है वो यूज कर सकते हैं. and I can give in your paper also. So as user I need to choose color. ठीक है. and I am choosing red color. Let's say I'm choosing red color. ठीक है. if color is equals to purple, अगर मैंने पर्पल चूज किया होता तो मेरा आउटपुट क्या आता? I like purple too, but I have choose red. तो क्या आएगा? That color is okay, but purple is better. ठीक है. and my program is stop. So this is my if and else. ठीक है. Okay, this is two statement. Okay. If then else. Okay, ये मैंने बता दिया if then else. Multiple if पे चले जाते हैं. Else if. When we have if, as if and else. So now that time we are using more condition. पहले तो if then else. हमने एक कंडीशन ली, वो ट्रू हुई तो ठीक है, नहीं तो फॉल्स हो गया. Now we have if, as if and then. So what we'll do, let me see here. देखो यहाँ we are using two condition box और multiple condition box यूज हो सकते हैं. लाइक हम पासवर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं कि अगर हम कोई पासवर्ड डाल रहे होते हैं तो वी आर पुटिंग 3 डिफरेंट पासवर्ड ओवर देयर और तीनों को तीनों गलत कर दिया. अब जब हमने तीनों को तीनों गलत कर दिया तो दैट विल बी ब्लॉक. ठीक है. तो वहां पे हमने फर्स्ट टाइम डाला इफ, फिर एल्स इफ डाला, फिर एल्स इफ डाला और फिर एंड में जाके हमने उसको एल्स कर दिया, मतलब ब्लॉक ही कर दिया. लेट से कि हमने एक पासवर्ड डाला इफ के साथ हमने पासवर्ड डाल दिया, देन हमने कहा एल्स इफ, हमने सेकंड पासवर्ड भी डाल दिया. दिस इज आल्सो रॉन्ग. नाउ इन एल्स थर्ड टाइम वी हैव पुट इट द करेक्ट पासवर्ड, तो लॉग इन हो गया. ठीक है. So password वाली example is also the if, else, if, then. Okay. So now we have the one more example here. तो यहाँ पे हमारे पास input color. Let's say again as user मैं ले रही हूँ red color. If color is equals to purple, तो क्या मैंने color purple लिया है? No. I will move to the next condition. If color is equals to yellow, have I taken the yellow? नहीं. So my program will be stop. But let's say कि अगर मैंने लिया होता है yellow, so as user I have taken yellow. Color is equals to purple? No. So if color is equals to yellow? Yes. So ये yes पे print हो जाता हमारा. ठीक है. So this is your multiple if. इसके और example C, else if. When we have password वाला भी मैंने आपको बताया. Just read this. आई होप कि ये बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. व्हेन यू विल थिंक अबाउट कि हम जब पासवर्ड यूज कर रहे होते हैं तो अगर हम मल्टीपल टाइम जो है वो रॉन्ग पासवर्ड कर देते हैं तो वो एल्स स्टेटमेंट कहाँ जाती है. और मल्टीपल इफ का मतलब है इफ, एल्स इफ, अगेन एल्स इफ, अगेन एल्स इफ, कितने भी जाके कंडीशंस आप लगा सकते हैं. तो हमारे इफ, एल्स इफ एंड एल्स. सी द pseudocode first.
First, your output will be 2 multiplied by 2 is, yes, actually 4. But as user, if I'm saying, if I'm very weak in math and I'm saying 2 multiplied by 2 is 2. So if my answer is equals to 4, तब के मैंने तो 2 लिया, तो then अब तो false हो गया ना, because I have taken the 2. So else if पे गए, तो क्या मैंने greater than 4 लिया? नहीं, मैंने तो वो भी नहीं लिया, मैंने तो less than लिया. So then I will jump to the else if, else, ठीक है, too low. But if I'm very good in math and I have taken 2 multiplied by 2 is 4 और मैंने बिल्कुल correct answer दे दिया, तो my output will be that's correct. And अगर मैंने greater than दिया तो फिर कहेगा कि too long, too high, sorry, like this. In pseudocode you can also in flowchart you can also see here कि output डाला, फिर then answer डाला, then if answer, अब मैंने तो 4 की जगह 2 ले लिया, तो आई एम वेरी वीक इन मैथ, 2 ले लिया मैंने, तो कह रहा है कि ओके यस, नहीं ये नहीं है, ओके मूव टू द नेक्स्ट. नो पर आए, नो पर आके फिर देखा, उसने बताया कि नहीं आपने तो और ही लो ले लिया है, तो फिर देन हमारा प्रोग्राम स्टॉप हो गया. और ऑल्सो यू कैन पुट दिस वन टू लो हियर, ठीक है. सो दिस इज एग्जांपल ऑफ ऑल्सो मल्टीपल इफ. देन ऑल्सो इस चैप्टर में हमारे पास है बूलियन ऑपरेटर इन सूडो कोड. बूलियन ऑपरेटर्स क्या होते हैं? देन व्हेन वी हैव मोर कंडीशन, हमें पता है बूलियन लॉजिक हमारे पास ट्रू होती है या फॉल्स होती है. अब जो ट्रू और फॉल्स होती है, उस ट्रू और फॉल्स को के साथ कुछ ऑपरेटर्स भी यूज होते हैं. 3 ऑपरेटर होते हैं हमारे पास, एंड, और, एंड, नॉट. व्हेन वी हैव वन कंडीशन इज फॉल्स एंड वन कंडीशन इज ट्रू, तो हमारा आंसर आएगा फॉल्स. विथ विच ऑपरेटर? विथ एंड ऑपरेटर. व्हेन वी हैव वन कंडीशन इज ट्रू एंड वन कंडीशन इज फॉल्स, with or operator will get the true. So in AND we can say that AND is multiply. 1 multiply with 1 is 1, but if 1 will multiply with 0 or 0 will multiply with 1, that will be 0. Or में क्या होता है? Or we can say that this is a plus sign. If my one statement is true, like I have 1 plus 0, so definitely my answer will be true. And the not we use for inverse, like if my condition is true, if I have value 0, so that will be 1, change into the 1. If I have value 1, that will be changed into the 0. ठीक है, तो ये कुछ प्रोग्राम भी हैं इसके, which we have already discussed in the class. ये मैं सिर्फ ऊपर वाला आप लोग को एक्सप्लेन कर देती हूँ. एग्जाम्पल नंबर 1, here we have, okay, so total equals to 97. My variable is equals to 97. If total is greater than 90, is 97 greater than 90? Yes, ट्रू है ये. एंड टोटल इज लेस देन 100, तो क्या 97 इज लेस देन 100? यस, ट्रू है. तो ट्रू एंड ट्रू, आंसर विल बी ट्रू, जस्ट इन रेंज. और अगर यहाँ पे फॉल्स, एक ट्रू और एक फॉल्स होता तो आंसर हमारा आता इनकरेक्ट अमाउंट. मूव टू द नेक्स्ट वन. और का मतलब है कि एक ट्रू और एक फॉल्स होना चाहिए हमारे पास. हियर वी हैव एग्जांपल. और अगर दोनों ही फॉल्स होते हैं तो हमारे पास एग्जाम्पल में फॉल्स ही आ जाता है. तो टोटल हमारे पास वेरिएबल इक्वल है 50 के, और इफ टोटल यानी वेरिएबल इज ग्रेटर देन 100, तो क्या 50 ग्रेटर देन 100 है? नो, फॉल्स आ गया. और टोटल इज लेस देन 0, तो क्या हमारा 50 लेस देन 0 है? नो, दोनों जगह फॉल्स आ गया. तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? आउट ऑफ रेंज. और अगर हमारे पास ये दोनों ट्रू होते या कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होता तो हमारे पास आंसर आता एक्सेप्टेड. ठीक है. Then this one, not का यहाँ पे एग्जाम्पल है, देखो लिखा हुआ है that the condition quantity equals to 0. This is true. The value in quantity is 0. ऊपर वाले प्रोग्राम में अब क्वांटिटी 0 लिखी हुई है. If not quantity equals to 0, then not true. Then not true is given false. ठीक है, जो भी स्टेटमेंट हमारा होगा, जो अगर हमारे पास 0 वैल्यू है तो हम उसको कंसीडर करेंगे विद द नॉट 1, और अगर हमारे पास 1 वैल्यू है तो हम विद द नॉट इसको कंसीडर करेंगे 0. ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, तो दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इसकी प्रोग्राम है वैल्यू इक्वल्स टू 0. करंटली वैल्यू है हमारे पास क्या है? हमारी वेरिएबल इक्वल है 0 के. एंड इफ कंडीशन विल ट्रू, तो वैल्यू 1 भी प्रिंट हो सकती है, वैल्यू 2 भी प्रिंट हो सकती है. So this is the example that what will be stored in the variable value if blue and then red are output. So we'll run the first one. First color हमारे पास है blue. Is this blue? नहीं, false आ गया. Is this red? नहीं, false आ गया. तो ना ही ये blue है और ना ही ये red है.
सो वैल्यू एल्स में भी जाके हमने देख लिया कि क्या फर्स्ट वैल्यू हमारी ब्लू है, नहीं है, क्या सेकंड वैल्यू हमारी रेड है, नहीं है। तो हमारे पास ना ही फर्स्ट वैल्यू मर्ज हुई ना ही सेकंड वैल्यू मर्ज हुई, तो हमारी वैल्यू क्या रह गई, बेचारी जीरो ही रह गई। इफ ब्लू एंड रेड ये दोनों ट्रू होंगी तो ही पता चलेगा ना हमें, लेकिन यहाँ पे भी ट्रू नहीं है और यहाँ पे भी ट्रू नहीं है, तो हमारी वैल्यू क्या रह गई, जीरो ही रह गई। अब यहाँ पे कह रहे हैं इफ रेड एंड ब्लू, सो विल चेक कलर 1 इज रेड एंड कलर 2 इज ब्लू, दोनों ट्रू है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सी वैल्यू प्रिंट हो गई, 1 प्रिंट हो गई। अगर हमारी स्टेटमेंट टच नहीं कर रही तो फिर वो जीरो ही वैल्यू रह गई हमारी, और अगर टच कर लिया तो फिर हमारे पास 1 आ गई। ठीक है, और वेरी गुड एग्जाम्पल्स एंड ऑल्सो यू कैन डू प्रैक्टिस ऑफ दिस, तो ये आपके लिए हेल्पफुल हो जाएंगे। 1.2 के अंदर हमारे पास है इफ देन इफ एल्स, इफ एल्स इफ एंड इफ, मल्टीपल इफ है हमारे पास, आ जाता है इफ एल्स इफ, मल्टीपल टाइम एल्स इफ भी आ सकता है, एंड एल्स। ठीक है, दैट्स इट।